Morning students. So today's topic is current source inverter or CSI. This is the circuit diagram for current source inverter in which fourth are resistor T1, T2, T3 and T4 are connected. This is the inverter part, and here you can see a current source is there, that is from E to L. The current source is there, and here it is your output side, which is your load. So when T1 and T2 are switched on, the current flows through the E through L inductor and it passes through T1 and it goes through the load, it passes through T2 and then again back to your DC source E minus. The main purpose of L is to provide a high impedance to the circuit and it control the current flow in the circuit. सो बेसिकली हम लोग एल का यूज़, जो इंडक्टर है उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं इस पूरे सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए और हाई इम्पेडेंस सर्किट को देने के लिए। करंट का जो डायरेक्शन है वो T1 और T2 के थ्रू फ्लो होगा और लोड के थ्रू ये फ्लो होगा। T3 और T4 इस समय ऑफ है। लेट अस सी द वेव फॉर्म फॉर दिस। हियर यू कैन सी दैट दिस इज योर input source is as DC, so it is a straight line. Output current is your positive output part. This is your input means output current. As you can see that from T1 to T2 the current enters the positive part first and then leaves through the negative terminal, so the current will be positive side, so it will be on positive sides. The output voltage is from negative to positive direction and the input voltage is also the same from negative to positive. At this instant T2, T by 2, that means half by T by 2, T1 and T2 gets switch off. After T1 and T2 get switch off, T3 and T4 is switched on. So the current flows through L, T3, then it becomes negative, so negative terminal current will flow. It passes the load, it passes to the T4 and get back to the E minus. So the current flows through T3, load, then T4, then E minus. So the output current will be negative from T half to T, and V in, that is the input voltage, is also negative at the output voltage end. So you can see here from T half to T it is negative half cycle, so the output voltage will be on from maximum to minimum, and when at T half position, when the current is 0, the input voltage suddenly dips to the negative value, dips to the minimum value, and when in the negative region, when the current again build up, the input voltage is again rises to the maximum position. So at T1 and T2 is when the T1 and T2 is on, the output current is positive from 0 to T by 2 and input voltage is equal to your output voltage. And in the condition T3 to T4 is on, the output current is negative from T half to T. So the input voltage is your negative output voltage. This is the complete waveform. सो अगर फिर से हम देखेंगे अगर इस यहाँ, तो यहाँ पे 4 थायरिस्टर का यूज़ हो रहा है। 4 थायरिस्टर में T1, T2, T3, T4 4 आपके थायरिस्टर हैं। ये आपका एक इन्वर्टर का पार्ट है। करंट सोर्स में हमारे पास E प्लस और माइनस E DC सोर्स दिया हुआ है, ये आपका DC सोर्स है। L आपका जो इंडक्टर है उसका काम है हाई इम्पेडेंस को बिल्डअप रखना और करंट के मूवमेंट को, करंट के कंट्रोल को फ्लो रखना। लोड पार्ट में आपके पास आई नोट करंट, जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा। वी इन के अक्रॉस ये जो आपका करंट है ये आपके पास T1 और T2 के अक्रॉस यहाँ पे आपको एक लोड वोल्टेज देखने को मिलेगा जो कि आपका इनपुट वोल्टेज होगा, और आपको आउटपुट के अक्रॉस भी एक वोल्टेज देखने को मिलेगा जो कि आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। जब आपका T1 और T2 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स T1 और T2 ऑन होता है, तो करंट जो होता है वो पॉजिटिव से डायरेक्शन से होते हुए T1 के थ्रू पास करते हुए लोड के थ्रू T2 के
पास होते हुए और नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो करंट जो होता है वो लोड के पॉजिटिव हाफ को टच करता है, दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट को ये टच करता है। इसका नहीं, जो आपका करंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो T1 T2 ऑन होता है, आउटपुट करंट आपका पॉजिटिव होगा। इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो आपका इनपुट सोर्स यहाँ पे आपका यही आपका VI है। VI करंट जो आपका एक DC सोर्स है, तो यहाँ आपका एक जो I करंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। आउटपुट करंट जो है वो हमको पॉजिटिव हाफ में देखने को मिलेगा, दैट इज 0 से T/2 जो है वो आपको पॉजिटिव पल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आपको जो T1 और T2 जब ऑन होता है तो आपका पॉजिटिव पार्ट को टच करता है। आउटपुट वोल्टेज आपको एक मैक्सिमम पोजीशन तक देखने को मिलेगा। इनपुट वोल्टेज भी इसी, क्योंकि आपका आउटपुट Vin इज़ इक्वल टू V0 है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो आपका सेम वैल्यू होगा। अगेन यहाँ देखोगे ये आपका T3 और T4 है, तो T3 और T4 आपका ऑन होता है, T1 T2 ऑफ हो जाता है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो T3 के थ्रू ये नेगेटिव पार्ट को टच करेगा। जैसे ये नेगेटिव होगा तो आपका आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये लोड के थ्रू नेगेटिव करंट T4 की ओर जाएगा, और T4 से ये वापस आपका यहाँ की वापस आपका सोर्स में जाएगा। तो T3 T4 जब ऑन होता है तो आउटपुट करंट आपका नेगेटिव होगा। ये आपका जो टाइमिंग ड्यूरेशन होगा वो T12 से T के बीच में रहेगा, और Vin इक्वल टू -V0 आपको देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखना, Vin इक्वल टू -V0, ये हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। सो T3 और T4 जब ऑन होंगे तो आपको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है। V0 की वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव से, दैट मीन्स आपका पॉजिटिव वैल्यू जो है मैक्सिमम से आपका मिनिमम पोजीशन में जा रहा है। तो Vin जो होगा, VI इज इक्वल टू -V0 हमने देखा था। यहाँ आप देखोगे तो Vin इज इक्वल टू -V0 है। तो Vin इक्वल टू -V0 में आपको अगेन इसका वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। मीन्स आपका जो वैल्यू यहाँ Vin की वैल्यू थी वो अब दूसरे फेज शिफ्ट के कारण आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात होगी कि जब T2 पोजीशन में करंट पहुँचता है तो ये जीरो हो जाता है। जब ये जीरो पोजीशन में पहुँच जाता है तो आपका जो इनपुट करंट वोल्टेज है वो तुरंत डिक्रीज होकर मैन आपका नेगेटिव पोजीशन में पहुँच जाएगा, नेगेटिव के मिनिमम पोजीशन तक पहुँच जाएगा। इसके बाद जब आउटपुट वोल्टेज डिक्लाइन होगा तो ये आपका ऑन होगा। ये आपका पूरा कंप्लीट वेव फॉर्म है। ये आपका I0 इसको कंप्लीट फॉर्म में दिखाया गया है, T/2 इस टाइप से दिखाया गया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।